Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are safe at home and learning from there only. So, we are again back with another video for class 9th, the chapter Fundamental Unit of Life. In our previous video, we have studied the cell organelles, that is, nucleus, cell wall, and chromosome. So, we are going to start or learn the other cell organelles. So, let's begin a session. Okay students, so this slide is about prokaryotes and eukaryotes. आपने सुना होगा prokaryotic cell and eukaryotic cell के बारे में. Now prokaryotes have a nucleus that houses its genetic material. Prokaryote cell consists of a large DNA molecule compacted in an area of cytoplasm called nucleoid region. The nucleoid region is protected and encased by the cell wall or cell membrane, the outer layering of the cell, similar to human skin. Finally, flagellum, a rudder-like device, affords the prokaryote the luxury of मोबिलिटी. अब आप देख रहे होंगे प्रोकैरियोटिक सेल जो है जिसके सेंटर मोस्ट पार्ट में न्यूक्लियस में डीएनए फिल होता है विच इज़ कवर्ड बाय अ न्यूक्लियोइड रीजन, और न्यूक्लियोइड रीजन जो है वो सेल वॉल से प्रोटेक्टेड रहता है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से. ओके, नाउ वन मोर थिंग, अ फ्लैजिलम इज प्रेजेंट. आपको ये जो पीछे नीचे रेड कलर का एरिया दिख रहा है, लाइंस दिख रही है, ये क्या है? फ्लैजिलम है. फ्लैजिलम क्या करते हैं? सेल को मूव करने में या मोबिलिटी देते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं वन प्लेस टू अदर. फ्लैजिलम और रॉडर लाइक डिवाइस अफोर्ड द प्रोकैरियोट द लग्जरी ऑफ मोबिलिटी, मतलब उनको मूव करने में हेल्प करते हैं. Prokaryotes are a group of organisms that lack a cell nucleus or any other membrane bound organelles. They differ from the eukaryotes which have a cell nucleus. Prokaryotes are the single celled organisms such as bacteria and are roughly 1 micrometer in diameter. Right, जो prokaryotes होते हैं उनके पास cell nucleus present नहीं होता है या membrane bound nucleus नहीं होते हैं. For example, some sort of bacteria. A eukaryote is an organisms whose cell contain complex structures. जैसे आप इस दोनों स्ट्रक्चर में देख रहे हो, एक है बैक्टीरिया, दूसरा है प्लांट सेल. ठीक है, प्लांट सेल आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, डिफिकल्ट दिख रहा होगा, राइट, बिकॉज देर आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. ठीक है, जो हर एक ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से कवर है, राइट, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. Prokaryotes are small in size, eukaryotes are large in size. Prokaryotes organized nucleus is absent. In eukaryotes, organized nucleus is present with nuclear envelope. Nucleolus is present in DNA. Right, single DNA molecule is present suspended in the cytoplasm. Prokaryote में DNA जो होता है वो cytoplasm में ही suspended होता है, right. और यूकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, राइट. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते, एज इट इज़ ऑर्गेनल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. Typical vacuoles are absent in prokaryotes. Typical vacuoles are present in eukaryotes. Mitosis is absent in prokaryotes and mitosis is present in eukaryotes. Now we can see the eukaryotic cell or animal cell, right. Cytoplasm. The next is cytoplasm. Cytoplasm, the contents of cell except from the nucleus. जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर होता है साइटोसोल, ऑर्गेनल्स, वेसिकल्स एंड साइटोस्केलेटन. साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स. साइटोसोल जो है इट इज़ अ फ्लूइड, जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल. इट इज़ होमोजीनियस एंड क्रिस्टेलो colloidal liquid that contains substance like water, ions, enzymes, vitamins, amino acids, carbohydrates, lipids, proteins, etc. अब सेल ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर
फंक्शन होता है। सेल ऑर्गेनल्स में बी बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। यूकैरियोट्स में अभी मैंने बताया कि सेल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से कवर होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी बोलते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन कहलाती है। द इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द ल्यूमेन, जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरनल पार्ट जो है वो ल्यूमेन है। अब यहाँ पे आपको दो टाइप के ER दिख रहे हैं, रफ ER एंड स्मूथ ER। रफ ER पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, राइट। तो इनको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे डॉट्स क्या हैं, ये है रिबोसोम, राइट। दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, राइट। The ERs, the internal compartment called lumen, is a separate part of cell with a distinct protein and ion composition. The ER folding generates a surface area much greater than that of plasma membrane. At certain sites, the ER membrane is continuous with the outer nuclear envelope membrane. Depending upon the presence or absence of ribosomes, there are two types. अभी आपको मैंने बता दिया rough and स्मूथ। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टूडेंट्स? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और लिपिड सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड इन ER आर यूज्ड फॉर सेल मेकिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का इसका काम है। इट हेल्प्स इन द इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो अंदर सेल के अंदर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो इट गिव्स सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। सो हियर डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गिवन। स्मूथ में रिबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे और रफ में रिबोसोम प्रेजेंट होंगे। स्मूथ जो है वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा और रफ जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। जो स्मूथ है उसमें वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड होंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने फॉर्म होगा। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, कुछ भी बोल सकते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स। आपको यहाँ दिख रहे होंगे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल सिक्रीट करते हैं। Golgi is a single complex in animal cell. In plants, they form separate unit called dicytosome. Membrane bound sacs of Golgi is called cisternae. ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं हम सिस्टर्ने। ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने के 3 टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं स्टैक्स, कुछ होते हैं ट्यूब्स और कुछ होते हैं वेसिकल्स। स्टैक्स मतलब जो राउंड राउंड है वो स्टैक्स हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्स हैं, और जो इंटरकनेक्टेड है वो हैं वेसिकल्स। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपको दिख रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी के जस्ट नीचे है गोल्जी अपैरेटस जिसके अंदर सिस्टर्ने हैं, राइट। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से कहाँ जाता है पूरा जितना भी प्रोटीन है, इट विल गो इनटू द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस में क्यों जाता है, क्या फंक्शन है गोल्जी अपैरेटस का? गोल्जी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। रिपेयर भी करता है और सिंथेसाइज भी करता है सेल मेम्ब्रेन को। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गोल्जी अपैरेटस से फॉर्म होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज विच आर सिक्रीटेड और एक्सक्रीटेड आर पैक्ड इन वेसिकल्स बाय गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में पैक्ड होती हैं? गोल्जी अपैरेटस में पैक्ड होती हैं। तो गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन हुआ स्टूडेंट्स? इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग प्रोसेस। ठीक है, टेक्स पार्ट इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टोरेज में हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है और पैकेजिंग में हेल्प करता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल
are synthesized in Golgi apparatus, and complex and simple sugars are also made in Golgi apparatus. The next cell organelle is lysosome. Lysosomes are called suicidal bags. क्यों कहा जाता है इनको suicidal bags? Because इनके अंदर phagocytic activities होती है, राइट, या लाइसोसोमिक एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर वो अपनी सेल को एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, इन डैमेज सेल लाइसोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम. कोई भी डैमेज सेल होगा उस सेल के लाइसोसोम, उस सेल का जो लाइसोसोम है वो क्या रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, जिसकी वजह से डाइजेशन होगा. फंक्शन क्या होते हैं लाइसोसोम के? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल. कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम होगा लाइसोसोम का. इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जिनका डाइजेशन होना है वो होगा. रिमूवल ऑफ सेल डेब्रीज मतलब सेल वेस्ट. सेल के अंदर का जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम. टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटामॉर्फोसिस? ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज. डेवलपमेंट स्टेज के टाइम पर अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. ऑर्गन्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स. जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी लाइसोसोम से डाइजेस्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया इज रॉड शेप्ड सेल स्ट्रक्चर. यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, सिस्टर्न है और मैट्रिक्स है. अंदर मैट्रिक्स क्या है? अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रिया is rod shaped cell organelle of aerobic eukaryotes which take part in the Krebs cycle. Krebs cycle में part लेती है. commonly called power house of the cell. क्यों power house कहते हैं? because it generate ATP. ठीक है, ATP is a form of energy adenosine triphosphate. ठीक है, और ATP कैसे फॉर्म करती है? ये जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का तब ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है. इट इज़ टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. सिस्टर्ने कंटेन्स ऑक्सीजोम्स विच आर पार्शली एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोज अ मैट्रिक्स हैविंग डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, राइट. रिबोसोम होते हैं और एंजाइम्स होती है. डीएनए एंड रिबोसोम्स मेक द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस. सेमी ऑटोनोमस मतलब सेमी ऑटोमेटिक, एज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स एंड एंजाइम. उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद के रिबोसोम्स होते हैं, राइट. तो उसको वो क्या बन जाता है? सेमी ऑटोनोमस मतलब वो खुद के एंजाइम सिक्रीट करता है और खुद के प्रोटीन्स भी सिक्रीट करता है, राइट. लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज उसमें फैगोसाइटिक एक्टिविटीज होती है, अपने सेल को खुद एनगल्फ कर लेते हैं. प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर लार्ज सेल ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं बिकॉज दे सिंथेसाइज और स्टोर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स. प्लास्टिड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है एंड क्रोमोप्लास्ट इज नॉन ग्रीन, दैट इज ब्राउन और रेडिश इन कलर. ल्यूकोप्लास्ट इज सिलेंड्रिकल टू राउंड इन शेप. Chromoplast is irregular in shape. Leucoplast is found in unexposed cell. Chromoplast is found in both exposed and unexposed cell. It take part in storage. It do not take part in storage. Leucoplast can change to other types and chromoplast provide coloration to the cell. Chloroplast, kitchen of the cell. Why kitchen of the cell? Because chloroplast contains what? Chlorophyll, which helps in the process of photosynthesis. Photosynthesis होगा तभी तो food form होगा. That's why kitchen of the cell. Bounded of two membrane inside of chloroplast is clearly marked into a colorless matrix called stroma and membrane system called grana. दो चीज़ों से बना होता है क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा और ग्राना. Each granum consists of stack of membrane bounded flatted stack called thylakoids. Granum जो होता है वो एक बुक के स्टैक के सेल से बना होता है जिसको हम बोलते हैं थैलाकोइड्स. थैलाकोइड्स के अंदर होते हैं क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स. स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन
DNA, RNA and ribosome. What are the functions of plastids? Provide color to fruits, flowers and attract the animals to help in pollination and fruit dispersal. Leucoplasts take part in storage of protein, starch and oil. Chloroplasts trap solar energy and manufacture food through photosynthesis. ठीक है. नेक्स्ट इज रिबोसोम. रिबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. ठीक है. रिबोसोम्स आर स्मॉल बाउंडेड बॉडीज फाउंड इधर इन फ्री स्टेट, ओके, और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर कंपोज्ड ऑफ रिबोन्यूक्लिक एसिड. रिबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए से बने होते हैं, रिबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से. दे आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते. 2 टाइप्स के रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 70S एंड 80S. 70S जो होता है वो 50S और 30S से मिलकर बना होता है, और 80S जो है वो 60S और 40S से बना होता है. 70S रिबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, और 80S जो होता है वो यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है. एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसीज. रिबोसोम्स जो होता है वो मैमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट होता है. रिबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. बताया था प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं इसलिए प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं. नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम और सेंट्रल अपैरेटस. ठीक है, आपने न्यूक्लियस पढ़ा. न्यूक्लियस पढ़ा था ना, मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था. अंदर मैंने आपको और क्या पढ़ाया था? क्रोमोसोम पढ़ाया था. ठीक है. अब वी आर मूविंग टू सेंट्रोसोम. इट इज़ अ स्मॉल नेकेड ऑर्गेनल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ एनिमल्स. न्यूक्लियस के जस्ट पास में ही प्रेजेंट होता है. इट हैज़ अ शीट ऑफ एपिकल साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर. इट एनक्लोजेस 2 माइक्रोसिलेंडर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स. ठीक है, जो आपका सेंट्रोसोम होता है उसके पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं आपके, उनको फॉर्म करते हैं. अंडरस्टैंड? इनके पास दैट ये सीलिया भी फॉर्म करते हैं, ये फ्लैजिला भी फॉर्म करते हैं. वैक्यूल्स. वैक्यूल्स को हम बोलते हैं स्टोरेज हाउस. ठीक है, स्टोरेज हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ स्टोर होता है. मेम्ब्रेन बाउंड नॉन साइटोप्लाज्मिक सैक दैट कंटेन्स नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. There are 3 types of vacuole: sap vacuole, food vacuole and contractile vacuole. Covering membrane of sap is called tonoplast. ठीक है, सैप वैक्यूल अगर किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड है तो उसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट. द फ्लूइड फिल्ड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप. ठीक है, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम सेल सैप. Recently, digestive enzymes are reported in vacuole of plant cell. ये आपको जो empty space दिख रहा है, this is only the vacuole, जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होती है. Now, the difference between plant and animal cell. In plant cell, cell wall present, animal absent. Plastids, plant cell में present, animal cell में absent. Centrioles और centrosome, plant cell में absent, एनिमल सेल में प्रेजेंट. वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और कम होते हैं किसमें? प्लांट सेल में. जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं. न्यूक्लियस लाई ऑन वन साइड इन प्लांट सेल एंड न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर इन एनिमल सेल. सेल इज रिजिड इन प्लांट सेल एंड सेल इज फ्लेक्सिबल इन एनिमल सेल. गोल्जी contains dicotysomes and in animal cell it form vesicles. Plant cells are larger in size and animal cells are smaller in size. These are the structure of plant and animal cell. You can draw it in your copy. Okay students, so this is all about the chapter fundamental unit of life. I hope you are well understood by this video. If any query is there, you can write in the comment section, then I will resolve your query. And if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.